Hello students, after successful completion of first year engineering, now you all are now in third semester. Congratulations, you have selected the civil engineering line. In the first year, you very well understand what is basic civil engineering. Now, one by one, civil engineering subject will be taught to you. Myself, Pankaj M. Patel, Assistant Professor, Vadasma Engineering College. Now, in civil engineering, we are making all the structure on the foundation, on the base of soil. So, soil and geotech and geology are also important subject for us. So, without wasting time, our new subject, geotechnical engineering, the subject code is 3130-606. Now, in the first topic, we will understand about types of soil. Now, you know, in your primary and higher secondary education, you have got some information about soil. There are which type of soil is good for foundation and which type of soil is bad for foundation, what is the bearing capacity of soil. You will understand all the matters in this semester. So first of all, in our first lecture, we will learn about the types of soil. Soil is a soil is God given gift to us for growing crops and making structures. Without base, we cannot make any structure. So, in our first lecture, we will not discuss anything about other matter, but only I will teach you types of soil. So, there are many types of soil. So, first of all, we will see all the types of soil and then we will go to in some depth. So, alluvial soil, ગુજરાતીમાં જેને કાપવાળી જમીન કહે છે. તો જે હિમાલયમાંથી જે નદીઓ આવતી હોય અને નદીઓ પોતાના પાણી સાથે જે કાપ છે એ ખેંચી લાવતી હોય તો એનાથી જે જમીન તૈયાર થાય એને એલ્યુવિયલ સોઇલ કહે છે. Now, lacustrine soil, so soil particles carried by flowing water and deposited in lakes. જે સરોવરોમાં જે
વહેતા પાણીના લીધે જે જમા થાય સોઇલ પાર્ટિકલ્સ એનાથી જે જમીન બને એને લેક્સ્યુરાઇન સોઇલ કહે છે. એઓલાઇન સોઇલ તો જે પવનથી જે રેતી ખેંચાય, પવનથી જે માટી અથવા રેતી ખેંચાઈ અને જે જમીન તૈયાર થાય એને એઓલાઇન સોઇલ કહે છે. અને કોલ્યુવિયલ સોઇલ, soil transported and deposited by gravity. Some soil is made up by the soil particles come by gravity, by self weight. Now in river, when we visit the river, we can see the sand. It is a coarse grained soil having particle size. એ જે રેતીની જે ના કણો છે એની જે સાઇઝ છે 0.075 mm થી 4.75 mm સુધી હોય છે. and the soil is cohesionless and pervious. now clay, तो जो क्ले है वो हम कहाँ पाते हैं? तो जो हमारा जो गांव का जो तालाब होता है उसमें जो माटी रहती है उसे हम क्ले कहते हैं. फिर जो फाइन ग्रेन्ड सोइल, तो माटीना जे कणो छे ए 0.002 mm थी पण नाना होय छे. इट इज ए कोहेसिव सोइल. नाउ ग्रावेल, तो ग्रावेल is a types of coarse grained soil having particle size range from 4.75 to 80 mm. ये जो रेती के जो और माटी के जो कण होते हैं उनसे बड़े होते हैं, तो उनकी साइज उनसे बड़ी होती है. ग्रावेल जिसे हम गुजराती में આપણે કપચી છે, ગ્રીડ છે, આવું બધું જે કહીએ છીએ એનો ગ્રાવેલમાં સમાવેશ થાય છે. નાઉ બાઉલ્ડર્સ. Boulders are rock fragment of large size, more than 300 mm in size. Now boulders, आपने कभी जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा तो उसमें क्या बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं जो हमारे जो कपची बोलते हैं उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं. तो ये जो रोक जो पहाड़ बोलते हैं उसको जो तोड़ के जो बनाते हैं उसको बाउल्डर कहते हैं. और मोर देन 300 mm, 300 mm means 30 सेंटीमीटर, बड़ी बड़ी साइज के होते हैं. नाउ ऑर्गेनिक सॉइल, ये जो ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं तो आप ऑर्गेनिक का तो मतलब समझते हो गया. कई लोग हमारे जो है वो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाना है. तो क्या ऑर्गेनिक सॉइल आर फॉर्म बाय ग्रोथ and subsequent decay of vegetable matter. એ જે વૃક્ષોના પાનો અને જે શાકભાજી છે એના જે પાંદડા અને આ બધું જે ભેગું થાય એનાથી ઓર્ગેનિક સોઇલ બનતી હોય છે અને ખેતી માટે ઘણી સારી છે ઓર્ગેનિક સોઇલ. Now inorganic soil. So inorganic soils are formed by the accumulation of fragments of inorganic skeleton of और सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो इनऑर्गेनिक सॉइल है वो जो हमारे जो जानवर लोग हैं, मतलब पक्षी पशु, ये उनके जो उनकी जो हड्डियां होती हैं वो डिपोजिट होने से जो सॉइल बनती है उसको इनऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं. उसमें जो हमारे जो अंडे हैं उनके सेल भी आ जाते हैं. नाउ कोहेसिव सॉइल. तो व्हाट इज कोहेसिव सॉइल एंड व्हाट इज कोहेजनलेस सॉइल? तो सॉइल इन विच एब्सॉर्ब वाटर एंड पार्टिकल अट्रैक्शन एक्ट एज डिफॉर्म प्लास्टिकली एट डिफरेंट वाटर कंटेंट आर नोन एज कोहेसिव सॉइल. Clay and plastic silt are cohesive soil. જે જમીનની અંદર પાણીનું શોષણ કરે
અને એ સોઇલના જે અણુ અણુ વચ્ચેનું જે આકર્ષણ છે એ પાણીની હાજરીના લીધે ડિફોર્મ થાય. આપણે માટીના રમકડા છોકરાઓ નથી બનાવતા હોતા, તળાવમાંથી માટી લઈને રમકડા બનાવતા હોય ને, તો પાણીની હાજરીમાં એ પ્લાસ્ટિક જેવું બિહેવિયર કરે એટલે એને કોહેઝિવ સોઇલ કહે છે. નાઉ cohesionless soil. Cohesionless soil means the soil composed of bulky grains are cohesionless regardless of the fineness of the particles. Sand and gravels are cohesionless soil. You can easily understand that cohesion cell means ये जो रेती बोलते हैं, जो नदी की रेती होती है, तो उससे क्या टॉयस नहीं, जो बच्चे नहीं बना सकते, सिर्फ उसमें बच्चे खेल सकते हैं. Or of sand and gravel are the example of cohesionless soil. So there are different types of soil, but in India the most important types of soil, we will understand it one by one. You can see in laboratory all the samples of soil are collected. All these soils matter is different from each other. You can see some are big particles, some are small particles. Without proper study, you cannot easily understand which type of soil. Now the main elements of soil are sand, silt and clay. You can see the sample of sand, જેને રેતી કહીએ છીએ આપણે, સિલ્ટ જેને આપણે કાપ કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, અને ક્લે એટલે માટી, બેડ રોક્સ જે પથ્થરના ટુકડાઓ, ग्रेवल, एल्यूवियम, तो इस तरह के सब सॉइल पार्टिकल होते हैं. Now you can see the main type sandy soil, જેને રેતાળ જમીન કહીએ છીએ, clay soil માટીવાળી, चौकी सॉइल जिसमें केमिकल ज्यादा होता है, सिल्टी सॉइल काप वाली जमीन, पीटी सॉइल અને loamy soil. So friends, first of all we discuss about black soil. So ये जो ब्लैक सॉइल है उसका दूसरा नाम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. तो ब्लैक कॉटन सॉइल, इट इज a residual soil containing high percentage of clay mineral and it has very low bearing capacity. It possesses high swelling and shrinkage property. ये जो ब्लैक सॉइल होती है वो ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए बोलते हैं कि वो जो कपास का जो कॉटन की जो फार्मिंग होती है इसीलिए बहुत अच्छी होती है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है. ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रिगर, उसका दूसरा नाम रिगर भी है. उसका जो कलर है वो डार्क ग्रे है, डार्क ग्रे टू ब्लैक होता है. उसमें हाई क्ले कंटेंट, उसमें मिट्टी ज्यादा रहती है. हाईली मॉइस्ट रिटेंटिव, ये जो पानी का जो भेज होता है उसको ज्यादा तक रखने की उसमें कैपेसिटी होती है. डेवलप क्रैक्स इन समर,
जब गर्मी होती है तो उसमें क्रैक्स दिखाई देते हैं। हाईली सुटेबल फॉर कॉटन, रिच इन आयरन, उसमें जो केमिकल है वो आयरन ज्यादा होता है, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड एल्यूमिना, इस तरह से केमिकल उसमें होते हैं। नाउ यू कैन सी रेड सॉइल। तो रेड सॉइल है तो बाय नेम इट्स कलर इज रेड। इट्स नेम इज कलर इज, this soil is named by his color. तो red soil formed due to the weathering of old crystalline rocks. जो જૂના પહાડો હોય એમાંથી આ રેડ સોઇલ તૈયાર થતી હોય છે। मोर सैंडी एंड लेस क्लेई, उसमें मिट्टी का जो प्रपोर्शन होता है वो कम होता है और उसमें जो रेती है वो ज्यादा होती है, उसमें भी आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। पोर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड लाइम, उसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जो चूने की मात्रा कम होती है। तो स्लाइटली एसिडिक, तो थोड़ा बहुत उनमें एसिडिक का प्रॉपर्टीज होता है। एंड डू नॉट रिटेन मॉइस्चर, वो जो भेज होता है वो गर्मी से फटाफट उसमें से इवोपरेट हो जाता है, उसकी मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी वो कम होती है। और उनकी पोरस की प्रॉपर्टी होती है। पोरस मीन्स ये जो वाटर होता है वो उनके पार्टिकल में से इजीली पास हो जाता है। नाउ लेटराइट सॉइल। व्हाट इज लेटराइट सॉइल? तो इस लेटराइट सॉइल में वो लेटिन वर्ड है, उसका मीनिंग ब्रिक्स। ये जो लेटराइट टाइप की सॉइल होती है वो हमारी ब्रिक्स बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। जब ये मिट्टी है उनको हाई टेम्परेचर में रखा जाता है तो वो है ना ब्रिक्स उसमें से बनती है, और एक बार ब्रिक्स बनने के बाद उसकी बैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। Bricks form under high temperature and rainfall with wet and dry spell. Silica is leached due to high rainfall. Remnant of iron and aluminum oxide left behind is known as laterite. उसका कलर है वो ब्राउन टू येलोइश होता है और becomes very much hard when exposed to atmosphere. एकदम हार्ड हो जाती है और उसमें से बिल्डिंग मटेरियल जो हमारी ब्रिक्स है वो लेटराइट सॉइल में से बनती है। जहां भी कंस्ट्रक्शन होता है वहां जो ब्रिक्स होती है वो लेटराइट सॉइल से बनती है। सो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए जरूरी है। नाउ डिजर्ट सॉइल। नाउ यू कैन सी हमारे गुजरात में जो कच्छનું રણ क्या છે, આવા મોટા મોટા રણ જે આવેલા હોય છે ત્યાં ડેઝર્ટ સોઇલ હોય છે। This type of soil is not favorable for the growing crops. और उसमें सैंड ज्यादा होती है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड। डेजर्ट सोइल कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट्स, उसमें
जो सॉल्ट है मीठा, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। ओरिजिनेटेड बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड विंड डिपॉजिट, ये जो रॉक्स होता है उसका डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये रेती बनती है, और ये जो पवन की वजह से उसको डिपॉजिट होता है। वेरी मच पोरस होती है, उसमें पानी डालो तो वो एब्सॉर्ब कर देता है। इसमें 90% सैंड और 5% क्ले रहती है। क्ले की मात्रा बहुत कम होती है। ये जो रेती है वो प्लास्टर के काम में ज्यादा आती है। मेसनरी के लिए भी ये सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो भी काम आता है। रिच इन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, उसमें जो नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है और नाइट्रोजन कम होता है, और उनका जो मॉइस्ट कंटेंट उसमें बहुत कम होता है। तो ये डेजर्ट सॉइल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। Now mountain soil, you can see that disintegration of rocks, ये जो माउंटेन होते हैं जो बड़े बड़े, मान लो कि हमारे गुजरात में अंबाजी, पावागढ़, अरवली, सभी जगह जो माउंटेन होते हैं तो क्या है कि उन पर वेदरिंग इफेक्ट होता है। तो बाय द वेदरिंग इफेक्ट ये जो माउंटेन है वो उससे जो सॉइल बनती है उसे माउंटेन सॉइल कहते हैं। और माउंटेन में भी कभी कभी फार्म होते हैं और उसमें फार्मर्स ग्राम और मेज की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। माउंटेन सॉइल फाउंड इन हिली स्लोप, जो स्लोप होते हैं वहां पाए जाते हैं। फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम फॉरेस्ट, ये जो जंगल होते हैं उन पर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर होती है वो उन पर जमा होने के बाद जमा हो जाती है, इसलिए वो बनते हैं। और उसमें पोटास और लाइम की मात्रा बहुत कम होती है। हमारे जो આસામમાં ચાના બગીચા જે કહીએ છીએ તો ત્યાં આ ટાઈપની જમીન છે। કાશ્મીર, સિક્કિમ, અરુણાચલ પ્રદેશ આ જે સ્ટેટ છે એમાં માઉન્ટેન સોઇલ વધારે છે। उसमें ये जो क्रॉप्स है वो चा, कॉफी અને ફળફળાદી खूब सारा थाय है। तो माउंटेन सॉइल, जो माउंटेन का डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें से रेडी होता है। और उसके बाद ये है वो सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। तो यू कैन सी कि उनका जो ऊपर वाला भाग है वो सॉइल का वो वाइट है और वो निर्देश करता है कि उन सॉइल में जो नमक की मात्रा है वो कितनी ज्यादा है। ये जो सी शोर होता है दरिया किनारो त्या आ टाइपनी सॉइल है और आ टाइपनी सॉइल सॉल्ट प्रोडक्शन माटे खूब सारी है। फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये सॉइल अच्छी नहीं है, क्योंकि इधर जो हम बिल्डिंग मटेरियल डालेंगे तो रस्ट हो जाता है। ये सैलाइन और एसिडिक एंड अल्कलाइन टाइप सॉइल बोली जाती है। हमारा जो पूरा जो दरिया किनारा सी शोर है उस पर इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। इट कंटेन सॉल्ट लाइक सोडियम
मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इनफर्टाइल होती है। उसमें आप कोई भी टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं पाया जाता। अनफिट फॉर कल्टीवेशन, बिन खेती लायक, सैंडी टू लॉमी टेक्सचर, और ये है वो हमारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड महाराष्ट्र में इस टाइप की सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल पाई जाती है। नाउ पीटी एंड मार्सी सॉइल। तो व्हाट डू यू मीन बाय पीटी? तो पीट क्या होता है? तो फाइब्रस एग्रीगेट ऑफ फाइनर फ्रेगमेंट्स ऑफ डिकेड वेजिटेबल मैटर। ये जो सड़ी हुई सब्जी का जो फ्रेगमेंट होता है, पार्ट्स होते हैं, उससे बनती है। उसमें फाइब्रस ज्यादा होते हैं। पीट इज ए वेरी कॉम्प्रेसिबल एंड वन शुड बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग फॉर सपोर्टिंग फाउंडेशंस ऑफ स्ट्रक्चर। वो क्या होता है कि वो ऐसी जमीनें हैं जो सॉइल होती है वो जल्दी दब जाती है, तो ये हमारे बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए बहुत डेंजरस है। तो अगर ऐसी सॉइल है तो वहां हम एज ए इंजीनियर किसी को एडवाइस नहीं दे सकते कि पीटी सॉइल पे आप अपना स्ट्रक्चर बनाएं। और ये मार्सी सॉइल, जो नीचे वाली फिगर है उसमें मार्सी सॉइल है। तो पीटी एंड मार्सी सॉइल अकर्स इन ह्यूमिड रीजन। ये जो भेज वाला जो पार्ट होता है उसमें पैदा होती है। फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर लाइक ट्रीज एंड वेजिटेबल मैटर्स। ब्लैक इन कलर, जो हमारा वो कलर में ब्लैक होती है। हाईली एसिडिक एंड हैवी, उसकी जो वजन की मात्रा है वो हाई होती है, वो एसिडिक होते हैं। और जो केरला है उसमें इस टाइप की जमीन पाई जाती है। कोस्टल ओडिशा, ओडिशा का जो दरिया किनारा का जो पार्ट है उसमें भी पाई जाती है। वेस्ट बंगाल में इस टाइप की जमीन पेटी एंड मार्सी सॉइल ज्यादा पाई जाती है। नाउ दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, एल्यूवियल सॉइल। काप वाली जमीन જેને કહીએ છીએ આપણે એલ્યુવિयल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल is formed by the river which brings organic matters with it during flow। और નદીનો કાપ વાળો ભાગ છે એમાં ખેતી સારી રીતે થઈ શકે, खूब सारी खेती અને પાક મેળવવો હોય તો એલ્યુવિयल टाइपની સોઇલ જરૂરી છે। Alluvial soil is formed when a soil carrying stream gradually loses its carrying capacity with decreasing velocity। पानी का प्रवाह ज्यादा होता है तब तो ये जो सभी उनके साथ जो खींची हुई मैटर है होती है वो चली आती है। लेकिन जब वो उसकी वेलोसिटी जब कम होती है तभी उसकी जो ये जो काप જે પકડવાની શક્તિઓ છે એ ઓછી થઈ જાય। એટલે in slowing down a river does not have sufficient power to keep the large particle of soil suspended। આમાં જે નદીની અંદર જે સસ્પેન્ડેડ પાર્ટિકલ્સ આવતા હોય એ બધા બેસી જાય ત્યાં, કારણ પાણીની અંદર એટલી ક્ષમતા નથી હોતી કે સહન કરી શકે। तो दिस पार्टिकल सेटल टू द रिवर बेड। तो नदीना किनाराમાં આ બધી જે પાર્ટિકલ્સ છે એ સેટલ થઈ જતા હોય છે। ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન વેલોસિટી કોઝિસ સ્મોલર પાર્ટિકલ્સ ટુ સેટલ। તો આ બધું જે કાપ છે, રેતી છે, માટી છે, આ બધું જે ધીમે ધીમે
સેટલ થઈ જાય, and these particles are deposited finally at the mouth of the river. તો નદીના કિનારે આ બધા પાર્ટિકલ્સ ડિપોઝિટ થતા હોય છે, where they form deltas of fine grained soil. ડેલ્ટા મીન્સ એવા ત્રિકોણાકાર ભાગ બનાવે કે જ્યાં આવી ફાઇન ગ્રેડ સોઇલ બનતી હોય છે. ખેતીના પ્રોડક્શન માટે ઘણી સારી જમીન કહેવાય. Now cohesive soil. So cohesive soil, the soil in which the absorbed water and particle attraction acts such as that it deforms practically at different water content are known as cohesive soil. और उसका दूसरा नाम उसे क्ले भी बोला जाता है, मिट्टी. Cohesive property of this soil is due to the presence of clay minerals like illite and kaolinite. This soil possesses higher plasticity. Now, what is residual soil? So, residual soil are those that remain at the place of their formation as a result of the weathering of the parent rocks. The depth of residual soil depends primarily on the climate condition and the time of exposure. In temperature zone, the residual soil are commonly stiff and stable. An important characteristic of the residual soil is that the size of the grain are indefinite. तो उसमें जो ग्रेन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, और ये जो रॉक्स होते हैं उन पर जो वेदर का जो इफेक्ट होता है उससे फॉर्म होती है, इसको उसे रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं. नाउ क्ले, ये जो हम अपने घरों में पानी पीने के जो मटके बनाते हैं, ये जो उसे ये जो हमारे इंडिया में जो कुंभार नाम की जो और प्रजापति ज्ञाति है, उन लोग इस मिट्टी का यूज करके मटके बनाते हैं. तो ये जो मिट्टी है उसमें जो प्लास्टिसिटी, मतलब कि पानी डालने के बाद वो मन चाहा शेप वो प्रोसेस करता है. और ये मटके और ये मिट्टी से जो सब टॉयस और ये पोट्स बनते हैं, तो वो उसमें जो पानी होता है उसका जो पोरस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ठंडा हो जाता है. उसे कोहेसिव सॉइल भी बोलते हैं. Clay is naturally occurring aluminum silicate composed primarily of the grain minerals, imparts plasticity and harden when fired or dried. ये जो मटके जो पहले मिट्टी के बनाते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं कि ये जो फार्मिंग प्रोडक्ट होते हैं, जो पूरा કહે છે, તો એની અંદર આ બધા જે કાચા માટલા છે એને રાખી અને ફાયર્ડ ઓર ડ્રાઈડ, કાં તો એને સૂર્યપ્રકાશથી સૂકવી દેવામાં આવે અથવા એનું અગ્નિથી એને શેકવામાં આવે. Or they may contain variable amounts of water trapped in the mineral structure by polar attraction. Or organic material which do not impart plasticity may also be a part of clay deposit. ये जो मिट्टी होती है उसमें ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल रहते हैं, तो ये क्ले हम उस पे ये जो
गरीबों का फ्रिज बोलते हैं, पानी ठंडा रखते हैं। तो हमारे जो पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही मिट्टी बहुत कल्याणदायी है, और उससे कई वेसल्स भी बनते हैं। जो हम रोटी बनाते हैं उसकी तवी, तवी बोलते हैं गुजराती में, उस वो भी उससे ही बनती है। और मिट्टी के बर्तन में जो बनाई हुई जो सभी सब्जियां होती है वो बहुत टेस्टी होती है। लॉम, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। ये जो तीनों का जो मिक्सचर होता है, मिट्टी, सैंड और क्ले, ये तीनों का जो मिक्सचर होता है उसको लॉम बोलते हैं। Loam soil generally contain more and humus than sandy soil. They have benefits of nutritious and drainage than silty soil, and are easier to till than clay soil. આમાં જે ખેડાણ થાય એ માટીની સોઇલ કરતા સારું થાય છે. So loams are gritty, moist and retain water easily. ये जो पानी का जो संग्रह है वो इस टाइप की जमीन होती है वो ज्यादा करती है. Now a type of soil that is transported from one place to another by the wind, उसको सैंडी सॉइल बोलते हैं. उसका दूसरा नाम ड्यून्स और लॉसेस होता है. तो ये जो विंड है वो हमारा सॉइल फॉर्मेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो फ्रेंड्स, in this our lecture we understand the types of soil. In our next lecture we will see how the soil are formed, and what is the geological cycle, soil formation and geological cycle in our next lecture. Thank you very much for attending lecture. Now आपको एज ए इंजीनियर हर टाइप की सॉइल का नॉलेज होना जरूरी है. तो अभी ये हमारा पहला लेक्चर है. उसके बाद हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें एग्जाम्पल, थियरी और सब आता है. तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.